That's very nice of you. Yeah. So Yeah. tell me what you want to share. Some magic that happened, or that you decided, yes, this is what you want to start. Like, what inspired you to come to the session? I'm very happy that you did. Yeah. Yes. Oh, Yeah. The network is actually a bit disturbing here. okay. Yeah. Yes. Yeah, I have attended the class earlier also. With you also, I have attended class earlier, the Power Book. Yeah, Okay. so I have always been in this, so like from last year June. Okay. So Hmm. always Very. have this faith and always in Shakrana mode. So Okay, wonderful, wonderful. So I'm happy that you have decided to start the book again, whether on your own yeah, or with someone else, but you must do the book. Okay, you must follow the practices how Rhonda Byrne has planned for us. And since you are in this journey since last June, I'm sure you'll catch it up and do it regularly and see the benefits. Yeah. Yes. Thank you. yeah. Yeah. Good. Very nice. So someone wants to share how was the magic footsteps today? आपको कैसा लगा? How are you feeling before the practice and after the footsteps? What were your feelings? You know what, Priya? I had Yes. gone out, इसलिए हम Hmm. मैजिक फुटस्टेप्स करते करते गए. हाँ. मैंने आई वाज सो एनग्रॉस्ड इन माय मैजिक फुटस्टेप, मैं जो दुकान जाना था वो क्रॉस करके और आगे चली गई. Then This I is realized amazing. that I came back. So you got a discount? You got the thing that you were looking for? No, what I wanted, I got that. Very good. This is wonderful, Karachi. This is seriously so sweet. हाँ? आप आगे ही निकल गए. And मेरे संग क्या हुआ था? I have shared earlier also, like when you're counting notes, you have to say thank you, na? You have to bless them. And I was shopping with my mom, like mom had to pay something, and she said, and I said, no, I want to count. Huh? I'm counting because, I want the money ka cycle to start. Okay. So I and she gave me, अच्छा ठीक है count करो. You know how it happens, like two people are counting, you just to ensure कि हाँ सही amount जा रहा है. And I was counting, and then midway I realized I'm not counting. I'm just saying thank you, thank you, thank you. Okay, and then again I had to do it. So this is what happens. Like when you're, in this thank you zone, you forget what you're actually doing. You're just busy doing thank you and happily doing thank you. So good. So these are the fun moments and these are the gratitude moments. So just keep on doing and enjoying. Yeah. Yeah. So but आप दुकान से तो आगे निकल गए. But and you told us that you came back and you got your stuff. So yes, anyone else wants to share कि आप दुकान में ही पहुंचे कि आगे निकल गए कला जी की तरह? Anjali wants to say something. मैडम मैडम थैंक यू मैम का प्लेस में थैंक यू गॉड कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको हर स्टेप थैंक यू गॉड ऐसे भी कर सकते हो आप. अच्छा. बट उसमें आप देखना कि थैंक यू गॉड आपको बहुत फास्ट बोलना पड़ेगा अगर आपको हर स्टेप में बोलना है ना? या तो आप ये करो, आप थैंक यू गॉड बोलते जाओ और 90 सेकंड्स के बजाय आप ज़्यादा देर बोल लो. आप ये कर सकते हो. हर टाइम जो थैंक यू बोलते हैं, हर टाइम मैंने थैंक यू गॉड भी बोल सकते हैं. एकदम बोल सकते हैं. ठीक. कई जनों ने पिछले सेशंस में शेयर किया था कि वो खाना खाते टाइम या पानी पीते टाइम थैंक यू के बजाय वो अपने कोई भगवान जी का नाम लेते हैं. तो आप वो भी कर सकते हो. बस बात ये होनी चाहिए कि जब आप भगवान जी का नाम ले रहे हो, कई जन ओम नमः शिवाय, जय सिया राम या ऐसा कुछ अगर आप बोलते हो, जय श्री कृष्ण आप बोलते हो, तो अब की बार अब से अगर आप वो बोलो तो आप ये सोचो कि आप उनको थैंक यू बोल रहे हो, दैट यू आर सो ग्रेटफुल कि उनकी कृपा आपके ऊपर है. आप ऐसा सोच के भी बोल सकते हो भगवान जी का नाम. ठीक है? थैंक यू फीलिंग्स के साथ मैंने कर थैंक यू की फीलिंग्स के Thanks. साथ. यस, फीलिंग्स आपकी थैंक यू वाली होनी चाहिए. या ग्रेटफुल का फीलिंग्स के साथ कर सकते हैं. यस, ग्रेटफुल की फीलिंग्स के साथ कर सकते हो आप. या हेलो ओके. प्रिया. हेलो हाँ प्रिया जी. हाँ. हम लोग यस. ऐसे भी कर सकते हैं. मैंने लास्ट सेशन किया था शालिनी छावछड़िया के साथ ना, जो कोलकाता की ही है. तो मैंने अंतिम के खाली 10-12 दिन किए थे, तो 40 स्टेप्स वाला मैंने किया था क्लास. हाँ तो क्या कि हर स्टेप के साथ ना जो भी कुछ नजर आता जा रहा है चलते चलते थैंक यू, फटाफट उसके लिए भी थैंक यू. 90 सेकेंड्स देख लिया कि कितने में राउंड काट सकती हूँ,
उतने काटते जो भी चीज नजर आए, स्विच नजर आया, फैन नजर आया, एवरीथिंग एनीथिंग, हाँ, उन कल भी तो सबको हमने ये थैंक यू बात की करते थी। हुए। बिल्कुल एकदम ठीक कर रहे हो। कल भी हम लोग ने यही बात की थी, जो दिख रहा है आप उसके लिए थैंक यू कर सकते हो। अगर आपको अपने लगता है लेग्स कि के नहीं, लिए, धरती माँ के लिए, पाँव के लिए, कोई भी चीज के लिए। बिल्कुल तो कल हमने यही बात की थी उषा जी, कल हम लोग ने यही बात की थी ना। कल मैंने मिस कर Yes, दी थी ना yes. क्लास, आई वाज हाँ सो टायर्ड, आई स्लेप्ट। हाँ, बट कल हमने भी यही बात की थी कि आप कोई भी चीज़ के लिए जो दिख रहा है अपनी बॉडी के लिए, आप कहीं जा रहे हो वहाँ पे डेडिकेट करो। इट इज़ लाइक आप किसी के लिए भी थैंक यू कर सकते हो। या ओके, यस, ओके, थैंक यू। या सो एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि आज आपने जब किया उषा जी तो आपको कैसा लगा? बहुत Did you say अच्छा। thank you to? ओके, ओके, वेरी गुड। अब तो थैंक यू की एक हैबिट हो गई है, जो भी चीज देखो हैबिट, खुद को भी और सामने वाले को भी बोलते हैं, बच्चों को भी, कि तुम ग्रेटफुल होते रहो। वेरी नाइस, वेरी गुड। या Ma'am, I'm seeing you. yes, we are You say seeing you. hi. You went Yeah, to we are school seeing today? you. All of us are seeing you and you're looking so Yes. cute. You went to school today first time? Now you talk to ma'am. Actually, she was not able to hear. I was wearing earpods. Okay, okay. Okay, Yeah. okay. See, ma'am was telling I'm seeing you. I was not knowing that she has unmuted. Okay, Say yeah. hi. So very good. Say, So Kalaji is asking, she went to school today? you went to school? Say, Yes. you were happy? You was happy? Very good. Very nice. Very good girl. Very good. Very good. Say yes. Yes. And now you should say thank you. Say louder. Yes, yes, very good girl. Yes, Deepika ji, आप उसको ऐसे ही सब समझाते रहिए and I'm sure she will get whatever she wants in her life and she will be like a super, she is a super blessed child, yeah? So yeah, Yeah. thank you. Yes. So let's start the session. Please unmute yourself, switch on the cameras and let's do the 10 little fingers. Okay? So 1, 2, 3 and let's start. 10 little fingers, 10 Fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 and little 1 nose. little 1 little nose. 10 nose. little fingers, 10 little Fingers, 10 toes, little 2 toes, 2 little ears, little and 1 ears, and little 1 nose. little Wonderful. nose. Wonderful. Yeah. So today's chapter is one of my favorites and I'm sure like one of my favorites. In fact, most of the chapters are super amazing. आपने देखा है कि कितनी सारी प्रैक्टिसेस इतनी क्यूट क्यूट हैं, स्वीट स्वीट हैं और इजीली आपने उनको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया होगा। चाहे आप पानी के बारे में बोलो, चाहे आप मैजिक मॉर्निंग के बारे में बोलो, ब्लेसिंग्स के बारे में, आप सुबह उठ के धरती माता को ऑलरेडी जय कर रहे होगे, है ना? लाइक विद ईच स्टेप यू आर ऑलरेडी डूइंग एंड विद टुडेज सुपर सुपर ईजी प्रैक्टिस कि आप रूम से निकल के जा रहे हो, आपको ध्यान रखना है थैंक यू। शुरू में हमको हमारी हैबिट के लिए आपको हो सकता है कुछ रिमाइंडर लगाने हो, इधर अपने रूम में कहीं कहीं आपने थैंक यू के स्टिकर्स चिपका दिए हैं या कुछ आपने अपने से मम्मा लोग पहले ना गांठ बांध लेते साड़ी में या आपने देखा होगा कोई और जन कर लेते किस लिए कि हमको याद रहे। तो अगर आपको ऐसे कुछ करना है, अपने लिए रिमाइंडर सेट करना है कि आपने अपने फ़ोन में हर 1 घंटे पे लगा लिया रिमाइंडर थैंक यू, हाँ, कि जब आप वो अलार्म बजा या वो रिमाइंडर आया तो आपको याद आएगा कि अरे मेरे को तो थैंक यू करना है। तो आपको ऐसे अपना एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वैसे ये जो आज की प्रैक्टिस है ये बहुत बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सो लेट्स सी हाउ व्हाट द प्रैक्टिस इज एंड हाउ इज इट सो पावरफुल। So, who wants to read today? Yes, okay, Khushbu, you can read. Yes. Yes, please start. Okay. Yeah. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. So day 20, heart magic. यस तो आज हम लोग डे 20 पे हैं और राउंड अबाउट का आज का जो चैप्टर है हमारा वो है हार्ट मैजिक। ठीक है, सबको पता है कि हार्ट क्या करता है? क्या करता है हार्ट? Circulates blood. यस, Pumps blood, Pumping. pumps blood to the other organs. यस इट डज दैट। अच्छा, तो अब वो हार्ट जो है वो हमारे बॉडी के अंदर है। ठीक है, एंड सबको ये शेप भी पता है यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये हार्ट ही बना हुआ है। Yes. किस पे बना हुआ है आप देखो, ट्री के ऊपर में बना हुआ है। यस, हाउ मेनी ऑफ यू डन दिस कि कहीं आपने ट्री के ऊपर, सैंड के ऊपर, कोई बिल्डिंग के ऊपर या कोई मॉन्यूमेंट पे बनाया आपने कहीं हार्ट?
या सिर्फ कॉपी में हाँ बनाया है? हाँ, मॉन्यूमेंट में तो हमने कभी नहीं बनाया है, बट यस कॉपी में बहुत बनाया है, सैंड में बनाया है, कार्ड्स में, बेस्ट फ्रेंड के कार्ड्स में, मम्मा लोगों के लिए, फैमिली के लिए आपने बनाया होगा बहुत, राइट? तो अब इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि आप देखिए सारी चीज़ में इसमें नेचर की ही है। यहाँ पे स्काई दिख रहा है, ठीक है, ट्री है, हाँ एंड इतने सारे लीव्स है यहाँ पे, एंड इफ यू सी यहाँ पे ग्रास भी दिखेगी आपको, एंड मे बी इज दिस वाटर, आई डोंट नो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे इस जगह में, और इट मे नॉट बी वाटर। अब इस ट्री हाँ, के लग ऊपर, तो पॉन्ड जैसा ही है। यस एग्जैक्टली, अब देखो इस ट्री के ऊपर में ये हार्ट बना हुआ है और इतना सारा स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट है। क्या रॉन्डा बर्नम हमसे ये कह रही है कि पेड़ में ही हमारा हार्ट है, या पेड़ में भी हार्ट है, पेड़ में भी दिल है, ट्रीज में, इज दैट व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल अस? सो लेट्स रीड, just 1 second. Yeah. Yes, please start. Yes. Gratitude is the memory of the heart. Hmm. Jean-Baptiste Monceau, French Revolution activist, 1743 to 1818. या अब ग्रैटिट्यूड जो है वो क्या चीज़ है? इतने दिन से हम लोग ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, बट व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? Being grateful. Memory. शुक्राना। शुक्राना, बट ये क्या है? ये कोई काम है जो आप करते हो? हाँ, मैंने लाइक व्हाट इज नहीं। Feeling. एग्जैक्टली It's a ग्रैटिट्यूड? feeling. इट इज़ अ फीलिंग, वेरी करेक्ट रेनू जी। अब ये जो फीलिंग है, कोई भी फीलिंग कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फीलिंग किसका काम है? Heart से. बिल्कुल, Heart. फीलिंग हमारी हार्ट से ओरिजिनेट होती है, और ब्रेन से क्या होता है? Doubt. Memories. डाउट तो आता ही है, थॉट आता है, राइट? Thoughts, memories. हार्ट से डाउट आता है, ब्रेन से डाउट आता है। सो स्वीट। अब आप देखिए, हम लोग बार बार ये बोलते हैं, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, फीलिंग्स आर मैग्नेटिक, ठीक है? हमने कई बार ये ग्रुप में शेयर किया है, बातें की हम लोगों ने इसके बारे में सेशन में, पावर बुक में। तो थॉट्स जो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, वो क्या होते हैं? वो डिसाइड करते हैं व्हाट वी वांट। हाँ, फीलिंग्स जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं, या उन्हीं से पता चलता है कि कोई चीज़ आपको क्यों चाहिए, व्हाई यू वांट इट। या तो ग्रैटिट्यूड जो दिल से निकलता है। अब ये जो हमारे जो फ्रेंच एक्टिविस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं, ग्रैटिट्यूड इज़ द मेमोरी ऑफ द हार्ट। हाँ, कि हार्ट ही है जो सारी फीलिंग्स याद रखता है। जो आपकी बेस्ट फ्रेंड होगी, जो आपकी फेवरेट नर्सरी टीचर होगी, जो आपका फेवरेट क्रश होगा छोटे से अभी तक, हाँ, वो सब कहाँ याद रहता है? वो देख के इट्स लाइक यू फील, यस एग्जैक्टली, यू फील सो वार्म, सो नाइस। वो 99% वही चीज़ें होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। आप देखिए, आर बॉलीवुड सॉन्ग्स आर फुल ऑफ दीज सॉन्ग्स, लाइक फुल ऑफ, किस वर्ड के आपको सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स दिखाई देंगे? सुने होंगे आप? एग्जैक्टली, दिल के। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग बताइए जिसमें दिल है? We do this each session because it is fun, because we see, we connect all these things. So दिल से आपका फेवरेट सॉन्ग है कोई, या है ही नहीं? दिल दिया गल्ला। दिल दिया गल्ला, yes. दिल तो है दिल, दिल तो है दिल। दिल, yes. दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो, क्या? दिल भी yes, yes. More दिल songs. दीवाना, दिल दीवाना, हाँ, yes. दिल दीवाना, बिन सजना के माने ना। Yes, so sweet. Yes. Any more? दिल दीवाना है, दीवाना दिल है ये, Yes. दिल Yes, दीवाना। दिल दिया गल्ला। हाँ, वेरी नाइस। और आप सब हम लोग ये करेंगे कि अपना जो फेवरेट सॉन्ग है दिल का, वो सब लोग ग्रुप में लिखेंगे, ठीक है? जो आपका फेवरेट सॉन्ग है स्टार्टिंग विद दिल, या जिसमें दिल आता हो, आपको सबको लिखना है। एंड अब देखो, ये दिल का गाना सुनते ही थोड़ा सा नाइस लगने लगता है। अब शीशा हो या दिल टूट जाता हो, वैसा सॉन्ग प्लीज अपना फेवरेट बनाइएगा, ठीक है? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नाउ दैट वी नो, उसके पहले आप चाहे जितने भी टूटा दिल वाले गाने सुनते हो, बट अब हम समझ गए हमको ऐसे सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोग वही चीज़ों की बातें करेंगे जो हमको चाहिए, ना कि उनकी जिनको हमको
नहीं चाहिए, राइट? सो अब आप देखो मैक्सिमम सॉन्ग्स जो दिल के होते हैं दे आर वेरी वार्म नाइस, उनको सुन के ही थोड़ा सा ना अच्छा वार्म मशी मशी फीलिंग्स आ जाती हैं। तो ये भी ये कह रहे हैं ग्रैटिट्यूड इज़ द मेमोरी ऑफ द हार्ट। तो आपको जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखनी है ग्रैटिट्यूड की, वो उसी में आती हैं जो दिल को प्यारा होता है। अगर हम आपको बोले थैंक यू फॉर द चेयर, बोलो, आपके मन में उतनी फीलिंग नहीं आएगी। अगर यही चीज़ हमने बोल दिया, आप बोलो थैंक यू फॉर योर कप ऑफ कॉफ़ी, अगर आपको कॉफ़ी अच्छी लगती है, थैंक यू फॉर योर कप ऑफ टी, तो आपको लगेगा वाओ यस, इस चाय के बिना तो क्या लाइक लाइफ क्या है। सुबह उठ के की जो आपकी मॉर्निंग चाय होगी, या जब आप थक के शाम को आते हो उस समय की जो चाय आपकी होगी, उसके लिए जो ग्रैटिट्यूड निकलेगा वो किसी और के लिए नहीं निकलेगा। अगर हम बोले आप ग्रैटिट्यूड करो अपने फैमिली मेम्बर के लिए, तो उनके लिए जो फीलिंग्स निकलेंगी वो कोई एक रैंडम जन के लिए नहीं निकलेंगी, है ना? तो इट इज़ द पर्सन, इट इज़ द फीलिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड। और हर दिन से हम लोग यही कह रहे हैं फेक इट टिल यू मेक इट, कि माने जब तक हमारी फीलिंग स्ट्रांग नहीं हो रही हैं तब तक हमको करते ही रहना है, फीलिंग्स करती ही रहनी है। आप देखिए डे 0 पे रोंडा बन ने ये कहा था कि हमको डेलिबरेटली थैंक यू बोलना है, और उसके थर्ड स्टेप में उन्होंने कहा था कीप सेइंग टिल यू एक्चुअली फील इट डीप इन योर हार्ट। जितनी ज़्यादा फीलिंग स्ट्रांग होंगी उतना ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक पावर बढ़ेगा टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स। सो इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स। तो अब जब हम हार्ट के चैप्टर में ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो भी अपन थैंक यू बोले, अब से पिछले 19 डेज से हमने इतना सारा थैंक यू प्रैक्टिस किया है। टुडे शी इज़ टेलिंग अस इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट that we connect the gratitude with the feelings of our heart. So today we are going to learn how we do that. Okay, yes, please start. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim इतनी जल्दी is आ भी गई? always the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the thing you have to be grateful for in the outside world increase too. यस, तो आप देखिए ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने बात की है कि हमारी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी अपन ग्रैटिट्यूड की बात करें। तो बिल्कुल आज जब हम थर्ड वीक खत्म करने वाले हैं, आप देखो कल हमारा थर्ड वीक का लास्ट डे होएगा, एंड आज हम लोग फीलिंग्स को कैसे और स्ट्रॉन्ग करना है उसके बारे में बात करें। तो एम उन्होंने यही कहा है कि टू फील इट एज मच एज यू कैन, और फीलिंग्स हमारी हार्ट से कनेक्टेड होगी। अभी आप समझो कि फीलिंग्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, कि थॉट से आपने ऑर्डर दिया, थॉट्स आर फ्रॉम योर माइंड, आपने ऑर्डर दिया यूनिवर्स को या आपने रिक्वेस्ट किया यूनिवर्स से, एंड फीलिंग्स जो दिल से आती हैं इट ब्रिंग्स दैट आइटम टू यू, इट ब्रिंग्स दैट ड्रीम और डिजायर टू यू। तो जितनी ज्यादा फीलिंग स्ट्रांग होगी उतना स्ट्रांगली हमारी ड्रीम्स हमारे पास आएंगी। आप थॉट से अपना यूनिवर्स में आस्क करते हो, बिलीव करते हो, और रिसीव आता है हमारे फीलिंग्स के हिसाब से, फीलिंग्स की इंटेंसिटी से, और फीलिंग्स हार्ट से ओरिजिनेट होती है। आप देखो बिल्कुल यही बोला जाता है ना, जब कंफ्यूजन हो लाइफ में कोई थॉट कुछ डिसीजन का, तो क्या बोलते हैं? दिल की सुनो, यही बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं दिल की सुनो? क्योंकि जब आप दिल की सुनोगे तो आप उसको अच्छे से करोगे। आप दिमाग की सुनोगे, आपका मन, आपका दिल नहीं है वो करने का काम। बट इफ यू फॉलोइंग कि लॉजिक कहता है कि यही करना चाहिए, हाँ, अगर लॉजिक कहता कि तेंदुलकर को पढ़ाई करनी चाहिए तो आज वो सक्सेसफुल होता। आप सोचो, उसकी मम्मा कहती नहीं छोड़ो क्रिकेट क्रिकेट, पढ़ाई करो, 10th तो पढ़ना ही पड़ेगा, 12th तो करना ही पड़ेगा, ग्रेजुएट तो करना ही पड़ेगा। अगर उसकी मम्मा उसको ये कहती लॉजिकल ब्रेन से, हाँ, उनके थॉट से, और तेंदुलकर उनकी बात अपने माइंड से सोच के कर लेता और अपने दिल का पैशन फॉलो नहीं करता, तो क्या होता उसके लाइफ में? he might have just been a run of the mill, जितने सारे बाकी हम आम लोग हैं हम लोग उसी तरह होता। But he followed his heart, he followed his passion, and he is what he is today. And most of the people who follow their heart, हाँ, have been successful. बमन ईरानी के बारे में आप बात करो कि at the age of 40 उसने अपना काम वाम छोड़ के अपने एक्टिंग के पैशन में आ गया। या आप सोचो who's that writer of 5 point someone, जिसने चेतन भगत। चेतन भगत, आप सोचो वो MBA करके सब कुछ कर कर आके उसने काम छोड़ के, अब जब उसने राइटिंग की, डिड ही फॉलो हिज हार्ट और डिड ही फॉलो हिज माइंड? टेल मी, क्या किया उसने? उसने अपने हार्ट की सुन के आगे किया। तो आज जब हम लोग ये कह रहे हैं कि फीलिंग सारी हार्ट से ओरिजिनेट होती हैं, तो हमारा ग्रैटिट्यूड जितना स्ट्रांगली अपन फील करके करेंगे उतना ज्यादा हमारे लाइफ में वो ड्रीम्स डिजायर्स वापस आएंगे। या सो शी इज टेलिंग अस, जितनी ज्यादा फीलिंग्स हमारी दिल में बढ़ेंगी, when the feelings of gratitude on the inside where? Inside our body। जब भी फीलिंग होती है inside our body मतलब inside our heart, तो जितना ज्यादा हमारी फीलिंग्स स्ट्रांग होंगी, क्या होगा? The things you have to be grateful for in the outside world increase too।
आपकी फीलिंग स्ट्रांग होंगी, तो आपको हर एक चीज में ग्रेटफुल होने की वजह दिखाई देगी, है ना? अगर आपके दिल में है ही नहीं, कैन यू, जिसने कभी आपके घर में कोई ना कोई तो ऐसा होगा, या आप किसी को जानते होगे, आप उसको थैंक यू समझा रहे होगे, वो समझ ही नहीं रहा होगा। हाँ, है कोई ऐसा आपके घर में? यस। क्योंकि उसके दिल में वाली फीलिंग नहीं आ पा रही है, तो उसको किसी, आप चम्मच के लिए थैंक यू कर रहे होगे, आप प्लेट के लिए थैंक यू कर रहे होगे, हाँ, वो नहीं करेगा, वो बोलेगा तो पागल हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अभी वो वाली फीलिंग नहीं आई है ना? सो व्हेन वी आर फीलिंग gratitude on the inside, then we will see that everything is a magic, that everything is a gift from the universe. Yeah, so this is what she's telling us, that we have to increase the intensity of the feelings in our heart, and we will find numerous things to be grateful for in the outside world. Yeah. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take you for you to reach that level. यस, तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम रेगुलरली ऐसे ही थैंक यू करते रहें, ठीक है, तो कई टाइम बाद, कई समय बाद ऑटोमेटिकली हमारी फीलिंग्स जनरेट हो जाएंगी। बट ये बुक ने शुरू में ही हमसे कहा था कि इसमें जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसी हैं कि क्या होएगा उससे, हमारी ड्रीम्स जितनी जल्दी आएंगी, जितनी जल्दी हमको चाहिए उतनी जल्दी आएंगी। अब ऐसे देखो ना, अगर आपका ड्रीम है दैट यू वांट अ 60 kg वेट, नो लाइक आपका ड्रीम ये है, और किसी ने बोला रोज 1 घंटा वॉकिंग करो, ठीक है, आप करते रहोगे, तो कई दिनों बाद, कई महीनों बाद, या मे बी कई साल बाद आपका ड्रीम वेट हो जाएगा। बट आप तो चाहते हो कि साल के एंड में आपको शादी में जाना है, उसी समय हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप हेल्दी डाइट भी करोगे, ठीक है, आप टाइम से सोओगे, आप न्यूट्रिशियस खाना खाओगे, आप वॉकिंग के संग संग में भी योगा कर लोगे, मे बी कुछ और करोगे, तो क्या होगा, वो जो आप कई साल नॉर्मल रूटीन से, जो आप कई साल बाद आपको आपकी ड्रीम मिलती, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग, या वो क्या होगा, वो और जल्दी आपको मिल जाएगी जब आपको चाहिए। आपकी ड्रीम है कि आपको कार चाहिए, ठीक है, यू वांट अ ब्रांड न्यू कार, हाँ, आप धीरे धीरे रुपए सेव कर रहे हो उसके लिए, और उस इंटेंसिटी से अगर आप जो थोड़े थोड़े रुपए सेव कर रहे हो, कितने साल बाद आपकी कार आएगी? पता नहीं। यही अगर आपसे किसी ने कहा कि SIP कर लो या लोन ले लो, समथिंग समथिंग, किसी ने आपको ऐसे टिप्स दे दिए, तो क्या होगा, आपकी कार आपको जल्दी मिल जाएगी। तो आज की प्रैक्टिस भी यही कर रही है कि ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो ऑटोमेटिकली कई साल बाद जनरेट होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा फीलिंग स्ट्रांग होगी उतनी जल्दी हमारी ड्रीम आएगी। आज की प्रैक्टिस क्या करेगी, उस टाइम को कोलैप्स कर देगी। कोलैप्स मतलब जो नॉर्मली हमारी फीलिंग्स 1-2 महीने में आती, आज की प्रैक्टिस से वो और जल्दी आ जाएगी, मे बी 2 days, 3 days, 5 days, आई डोंट नो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स सी। The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude. By focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. या तो रौनबन कह रही हैं, आज की प्रैक्टिस क्या करती है, ये हमारी फीलिंग्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। किन फीलिंग्स को? ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स को, बाकी चीज़ों को भी। आपने देखा है, आई डोंट नो इफ यू हैव ट्राइड इट और नॉट, कहीं पे हमने पढ़ा था या सुना था, उसमें कहा था कि अगर इफ यू कीप योर हैंड ऑन समवन्स हार्ट, इट हैज टू बी समवन क्लोज, ऐसे ही रैंडम किसी के हम हार्ट पे हाथ नहीं रख सकते हैं जाके, और उसकी हार्ट बीट आप अपने हाथ से फील करोगे, थोड़े टाइम बाद आपकी हार्ट बीट का जो रिदम है और उसके हार्ट बीट का रिदम है, वो दोनों सेम हो जाएगा। जनरली क्या होता है, अपन जब वॉकिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग के कितने बार फुट स्टेप्स मैच नहीं करते हैं, जब 2-3 दिन चल रहे होते हैं, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखोगे उसका लेफ्ट फुट और आपका लेफ्ट फुट ऑटोमेटिक संग चलने लगता है। आप कर नहीं रहे हो बट वो ऑटोमेटिक होने लगता है। हाँ। वैसे ही हार्ट बीट का भी यही है कि इफ यू आपका अपने दिल पे आपने हाथ नहीं रखा, सामने वाले के दिल पे आपने हाथ रखा, एंड योर हार्ट starts beating in the rhythm of the other person's heart. आप ट्राई करके देखना, I'll not say immediately हो जाएगा, but 1 or 2 minutes when your whole
फीलिंग समवन एल्सेस हार्ट, आपका हार्ट बीट वैसे ही उसी रिदम में हो जाएगा. तो चेक इट आउट एंड आप बताना कि ऐसा आपने किया है कि नहीं है. या एंड आई एम प्लीज शेयर करेगा बिकॉज आई हैव ट्राइड इट एंड इट इज लाइक साइंटिफिकली प्रूवन. तो आप भी करके देखना कि सी दीज थिंग्स यू नो, उससे क्या होगा, इट इज लाइक ऑल क्यूरियोसिटी लाइक आई टोल्ड यू. तो उससे आपको लगेगा कि हाँ ऐसा होता है. दिस इज द पावर, दिस इज द मिरेकल, आवर बॉडी इज बिल्ट लाइक दैट. तो आज की प्रैक्टिस क्या कह रही है कि जब भी हम थैंक यू बोले, हमको क्या करना है, हमारे को अपने दिल, हमारे दिमाग को, वी हैव टू फोकस और आवर माइंड इन द एरिया ऑफ आवर हार्ट. हाँ, तो ये कह रही है कि जब हम ऐसा करते हैं कि हमारा दिमाग हम अपने दिल पे लगाते हैं, तो हमारी रिदम ऑफ द हार्ट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ लिटिल स्लोअर. इट्स लाइक जहाँ पे आप अटेंशन देते हो, वेयर एनर्जी गोज, या वहाँ पे सॉरी, वेयर फोकस गोज द एनर्जी गोज इन दैट डायरेक्शन. तो क्या होगा, हमारे दिल पे जब हम फोकस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो जाती है. हार्ट बीट स्लो होने से क्या होता है, हार्ट बीट फास्ट कब होती है, जब आप एंग्शियस होते हो, आप गुस्सा होते हो, तभी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. हाँ, आपको डर लग रहा होता है कोई चीज़ का, है ना, दैट इज व्हेन योर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्टर. और आप देखो जनरली हार्ट बीट जब फास्ट होती है तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं. तो जब हम हमारी हार्ट बीट को स्लो कर लेते हैं, हमारे सारे सेल्स में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है. तो शी इज टेलिंग अस दैट इज द पावर ऑफ दिस हार्ट मैजिक, कि हम कुछ भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो व्हाट वी हैव टू फील इज दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट लब डब साउंड, द हार्ट इज सेइंग थैंक यू, कि वो आपके दिल से थैंक यू ओरिजिनेट हो रहा है. और जो चीज़ दिल से निकल रही है मतलब आप उसको फील करके ही बोलोगे. या गुस्सा भी जब आता है स्ट्रांगली आप किसी के लिए फील करते हो तो ही गुस्सा आता है. या सो शी इज टेलिंग अस टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर सेइंग थैंक यू, हमको फील करना है कि हमारा दिमाग हमारे दिल पे फोकस कर रहा है एंड दिल से वो थैंक यू निकल रहा है. या तो शी इज टेलिंग अस शुरू में हो सकता है हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, बट विद प्रैक्टिस इट कम्स. या सो शी इज टेलिंग अस इस प्रैक्टिस को करने से हमारी फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. आप देखो धीरे धीरे रौंडापन हमको मैथ्स में आगे बढ़ती जा रही है. जैसे बच्चे लोग या हम लोग ने जैसे सीखा था, पहले हम लोग एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, फिर धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल करते थे ना. तो वैसे ही कह रही है इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, माने 2 to the power of 10, 5 to the power of 10, दैट इज एक्सपोनेंशियल. तो उस रेट में बढ़ जाएगा, माने बहुत ज़्यादा हमारी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बढ़ेगी इफ वी डू व्हाट, वी फोकस आवर माइंड on our heart whenever we are saying thank you. Okay, so let's read. Okay. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. या तो वो कह रही हैं कि हमको हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, हमको हमारा दिमाग मतलब हमारा माइंड फोकस करना है अराउंड द एरिया ऑफ आवर हार्ट. तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये प्रैक्टिस भी यहाँ पे करेंगे संग में मिलके. तो शी इज टेलिंग अस कैसे करना है, कि हमको हमारी आंखें बंद करके, सिंस वी आर बिगिनर्स इन दिस प्रैक्टिस, आंखें बंद करके, बिकॉज इट इज ईजियर. आंखें खोल के क्या होता है, हम लोग कहीं भी कुछ तो भी देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं. एंड अगर हम आपको बोले आप फोकस करो ऑन योर टमी, सबको पता है टमी कहाँ है, हम लोग को लगता है कि इस एरिया में, बट डू वी एक्चुअली नो इट. लिवर कहाँ है, हमको तो अभी भी कंफ्यूजन है, लेफ्ट है कि राइट है, बाय द वे. ठीक है, तो हमेशा कभी दर्द होता है लगता है लिवर इधर है कि उधर है. ऐसा गूगल करने के बजाय, रौंडा ने बोला ना गूगल नहीं करना है. ठीक है, इधर है कि उधर है, दर्द कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है. यस, तो शी इज टेलिंग अस हार्ट जनरली हम लोग को पता होता है, क्यों, बिकॉज वहाँ पे वो लब डब कर रहा होता है. स्टमक में तो जब गुड़गुड़ होती है तभी पता चलता है कि स्टमक है. या बट हार्ट जनरली वी नो ना, इट इज ऑन आवर लेफ्ट साइड, ऑल ऑफ अस नो. तो शी इज टेलिंग अस हमको आंख बंद करके फील करना है कि हमारा हार्ट कहाँ है, हम लोग को हमारा फोकस इन द एरिया ऑफ आवर हार्ट रखना है. एंड देन वी हैव टू मेंटली से द वर्ड्स थैंक यू, और कई बार करना है. शी इज टेलिंग अस वंस यू हैव प्रैक्टिस इट अ फ्यू टाइम्स, तब हमको आंख बंद करने की जरूरत नहीं होगी. बट जैसे आपने कोई चॉकलेट खाई या कोई टेस्टी चीज खाई तो ऑटोमेटिकली आंख बंद हो जाती ना. वी हैव सीन इन सो मेनी कैडबरी सिल्क एड्स कि वो कैडबरी खाती है और आंख बंद करके उसका आनंद लेती है, राइट. तो शी इज ऑल्सो टेलिंग अस व्हेन वी क्लोज आवर आईज, आवर
focus, our senses become more heightened. तो जब हम focus करेंगे हमारे heart के ऊपर, हमारी feelings और strong होंगी. Yeah, तो she's telling us when we do that, our feelings of gratitude are much stronger. अब ये पूरा chapter जब heart के बारे में है, तो हम लोग क्यों उसको कह रहे हैं? इतने सारे quotes, सब कुछ लिखा हुआ है. Rumi says that if you follow your heart, you can touch the sky. मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जब हमने सब ने इस अर्थ पे जो जन्म लिया है, एवरीवन हैज अ पर्पस. हमारे संग कोई रूल बुक आई है कि यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू डू दिस? नो, वी डोंट नो इट. तो ऐसे बोलते हैं, लाइक आई हर्ड इन अ कपल ऑफ प्लेसेस, रेड आल्सो, कि व्हेन वी आर डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट ओके, इट इज आवर हार्ट व्हिच टेल्स अस दिस इज नॉट ओके. आप किसी के संग गलत व्यवहार करते हो या गंदा से बोलते हो, तो सबसे पहले कहाँ लगता है कि गलत हुआ, आपने गलत किया. यू फील इट ना कि हाँ ठीक नहीं किया. दिमाग बोलता है कि नहीं सही तो क्या, उसने तुमको एक चिट या तुमने चैट कर दिया, है ना, टिट फॉर टैट, हम लोग यही करते हैं ना. बट इट इज अ हार्ट दैट सेज ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए था, या यू शुड हैव स्टक टू व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड हैव स्टक टू व्हाट इज राइट. तो जो ये रूल बुक जो भगवान जी बेचते हैं, इट इज इन आवर हार्ट. So if that is why it is said, if you follow your heart, you will find success. If you follow your heart, you will find your passion. इसलिए बोलते हैं. तो ये हम लोग को करना है कि सब चीज़ अगर हम लोग दिल से करने लगें, then we will always do the right thing. तो आज की प्रैक्टिस उसमें बहुत important है कि first we should understand how the heart communicates with us. What is it trying to tell us? Yes. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. Yes. तो रोना बहन कह रही है बिल्कुल यही करना है हमको. We will do this also. और आप बताइए हार्ट के संग कितने सारे एडजेक्टिव्स आपने सुने हुए हैं, बताइए. हाउ मेनी? बोलते ना कोल्ड हार्टेड, हार्ड हार्टेड, Soft hearted, सॉफ्ट हार्टेड, Beautiful heart. ब्यूटीफुल हार्ट, यस. और Stone hearted. Large hearted. हार्टेड, लार्ज हार्टेड, वार्म हार्टेड, पत्थर का दिल. पत्थर, Soft-hearted. यस, पत्थर का दिल, Disheartened. Disheartened. disheartened, yes. एंड बिग हार्टेड. आपने और कुछ सुना है? बिग स्टमक, Yes. बिग लिवर, सॉफ्ट स्टमक, कहीं सुना है आपने? नहीं. तो ये सारे एडजेक्टिव्स. और भी Fatty बताइए. liver. यस, फैटी लिवर, वो तो खैर बोलते हैं कि उसका कोई ब्रेकडाउन है, ठीक है. बट हार्ट का तो ये सब कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है ना. हाँ, फिर भी अपन बोलते हैं. और बताइए और क्या क्या सुने. लेट मी ऐड टू माय डिक्शनरी. और क्या होता है? Heart of gold. यस, हार्ट ऑफ गोल्ड, या नाइस. Golden heart. Yes, golden heart. गोल्डन हार्ट, या. Broken heart. हाँ, ब्रोकन हार्ट, Mhm. यस. दिल की मैंने बात. एक बार है ना अपने हम्म. बेटे के लिए लिख रहा था कि हैज अ वेरी गुड हार्ट, तो हाँ. गोल्डन हार्ट लिख के सोचा कि हार्ट ही गोल्ड का हो जाएगा, तो नहीं लिखा. नहीं, ऐसा क्यों सोचा आपने? हम लोग जनरली गोल्ड किस लिए बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं प्योरिटी के लिए, है ना, रिचेस के लिए. जनरली गोल्ड हार्टेड मतलब लाइक ना प्योरिटी के लिए बोलते हैं. हाँ, कि लाइक प्योर हार्टेड पर्सन. यस, या उसलिए बोलते हैं. तो बिल्कुल उसमें कोई बात नहीं. आप बिल्कुल लोग एज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, मतलब वो इतना माने जेन्युइन बंदा है ना, इसीलिए बोला जाता है ना. और आपने सुना कभी आपने सोची ना वो ऐड ही आता था ना सफोला का, तेरे दिल की बात मैं जानू, राइट. तो मैंने दिल की बात, दिल कोई बात करता है नहीं. बट ये सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग हार्ट के संग कनेक्ट करते हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स. हाँ, और जनरली हम लोग लोगों को उसी के हिसाब से बोलते हैं जैसा अपन समझते हैं उसका जो हार्ट उसके लिए उससे करवा रहा होता है. तो ये जो प्रैक्टिस है ये हमको और हमारे दिल से कनेक्ट करती है. एज इफ वी नीड एनी मोर कनेक्शन, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद द हार्ट. एंड द मोर वी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड विद आवर हार्ट, विद द फीलिंग्स एक और है kid at heart. kid at heart. Yes. Soft-hearted. Heartiest congratulations. Heartiest. यस, ये भी है. हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस, या बिल्कुल ये भी है. Caring, sensitive heart, loving heart. यस, Curious heart. curious. हाँ, तो अब देखो ये Sweet heart तो भूल ही गए. सॉरी, Sweet Which heart one? तो भूल ही गए. Sweet heart. स्वीट वो हार्ट. तो मेरी sweet heart है.
Yes. Yeah. So many we know. दिल से दुआ देती हूँ दिल से दुआ देते हैं. from the देखिए, bottom of my heart. बॉटम ऑफ माय हार्ट, एग्जैक्टली. Yeah. देखो कितनी सारी चीजें हम लोग हार्ट से एसोसिएट करते, लाइक जनरली करते, पर आज दिल कर रहा है ये खाने का, हाँ, लाइक दिल करता है खाने का, हाँ, दिल का क्या बोलता है, उसको कुछ खाना है, उसको तो सिर्फ खून चाहिए, ठीक है, खाना क्यों चाहिए दिल उसको? मांगे मोर. हाँ, दिल. यस. सी, तो आप देखो एक्चुअल में हम लोग कितनी सारी चीजें अननोइंगली ऑलरेडी फीलिंग्स हमारी हार्ट से एसोसिएटेड रहती है, हाँ. तो वैसे ही जब हम लोग ग्रैटिट्यूड भी दिल से करने लगेंगे, हमारे बिग हार्ट, सॉफ्ट हार्ट, लाइट हार्ट, उससे करने लगेंगे, तो हमारी इंटेंसिटी और स्ट्रांग हो जाएगी. तो हम लोग जब भी अब थैंक यू बोलेंगे, तो हम लोग सोचेंगे कि हमारे दिल से वो थैंक यू निकल रहा है. और ये कैसे होएगा? वी हैव टू फोकस आवर माइंड, वी हैव टू फोकस आवर अटेंशन ऑन द एरिया ऑफ आवर हार्ट. या तो अब हम लोग बिल्कुल यही करेंगे. ऑल ऑफ अस विल डू दिस प्रैक्टिस. यस, वी वांट सम. अच्छा, ठीक है. या, सो प्लीज सिट स्ट्रेट. We'll just do a little gratitude for our heart, and then we will continue with the chapter and the practice. Is that okay? Okay. Yeah. Just 1 second. So close your eyes. And what you do is you put your right hand on the area of your heart, in the area of your, जहाँ पे हमारा heart होता है, left side. Yeah. Now take a deep breath in and a long breath out. One more time. Take a deep breath in and a long breath out. Bring your attention to your nostrils. Keep breathing. Feel your heartbeat. A long breath in and a long breath out. Relax your body and relax your mind. Feel the rhythm of your heart. Feel the cool breath as you inhale. And the warmth of the breath as you exhale. Slowly and gently, keep breathing. Your heartbeat was the first sound that your mom heard. The doctor told your mom and your parents that you are healthy and fit hearing your heartbeat. Before any organ of your body, your heart was the organ that was formed. Nine months in your mother's womb, the heart was beating. Slowly, gently, feel the rhythm of your heart. Thank you, my strong and healthy heart. When you were born, you were a tiny little baby, and you could only feel the love from your mom, your dad, your family.
Your heart was the one which let you know that you are so special to them. You could feel their love with your heart. Thank you for this love that you felt. Thank you, my healthy heart, a strong, healthy, fit heart. You went to school, you saw your friends, you loved your teacher, all because your heart made you feel all of this. Thank you, my strong and healthy heart. Thank you for making me feel all these feelings. You kept pumping blood and kept supplying oxygen to my trillions of cells in my body. Thank you, my strong and healthy heart. Thank you, thank you, my beautiful, my healthy heart. I remember the time when I fought with my best friend. My heart felt heavy, but my heart only told me that she's your special friend. Forgive, forget, move on. Thank you, my healthy heart, for being so wise, for being so strong, for showing me the correct path always. Thank you for showing me the love for my crush, my favorite teacher, my favorite toy. Thank you, thank you, thank you. Think about your topmost dream, your favorite dream. It has come true. You're so happy. You're so grateful and you're so joyful that your dream has come true. You're sharing the news with a happy heart to your favorite friend, family member, your loved one. You're so happy and your heart is full of gratitude for your dream having come true. Thank you, God, for making my dream come true. Thank you, my healthy heart, for making my dream come true. Dil se thank you for my dream that has come true. Feel the happiness, feel the gratitude. Thank you, thank you, thank you. You're so happy, you're so joyful. Visualize that your dream has come true. Thank you, my strong, kind, grateful heart, for making my dream come true. Live that dream, feel the happiness, and feel the rhythm of your heart. With each heartbeat, it is saying thank you. Keep your focus on your heart. You're sharing with everyone that your dream has come true. You're so joyful, so excited.
that something that you were wanting is there with you. Feel, experience with all your senses. You're seeing your dream, you're hearing the sound, you're smelling wonderful things, you're using the sense of touch. Thank you, thank you, thank you for my dream having come true. With all my heart, I am thankful to the universe for making my dream come true. Thank you, my healthy heart, for keeping me balanced always. Thank you, my strong heart, for showing me the correct path always. Thank you, my passionate heart, for making me follow the path of gratitude. Thank you, my giving heart, for learning how to give to everyone. I'm so thankful to my heart for supplying oxygen to all the trillions of cells in my body. You are working 24/7 even when I'm asleep. All the time, every time, you are working for me, guiding me, supporting me, helping me. Feel the gratitude for your healthy heart. It is full of love, full of compassion, and is always guiding you. Thank you, my healthy heart. Bring your attention back to your breath, to your nostrils. A deep breath in and a long breath out. Keep breathing. Feel the warmth of the breath as you exhale. And with each inhale, feel the coolness of the air. Your heart is relaxed. Thank you, thank you, thank you. Relax your body, relax your mind, and bring your attention back to the session. Slowly and gently open your eyes whenever you are ready. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Priya. Thank you. Thank you, Dee. Thank you. Thank you, Thank you Dee. so much. Thank you. Thank you for sharing this with me. Thank you. Thank you. Yeah. So this was the heart gratitude that we did. And today's practice is telling you about that we have to focus and visualize our dreams by doing this heart magic practice. So when we were doing this practice, we focused only on one dream, but we are going to read how we have to do for all our dreams today. This is the practice. Okay. So we'll continue with the reading. Okay. So yes, Khushbu, please start from here as part. Huh. Okay. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud, and when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart, keep your mind on your heart area, and say the magic words again. Thank you, slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, uh, you will also have dramatically increased your gratitude for your top 10 desires. या तो क्या करना है जो हमने हमारी ड्रीम लिस्ट बनाई थी एवरीवन मेड अ ड्रीम लिस्ट ऑन डे 13
हाँ, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपनी ड्रीम लिस्ट की एक एक ड्रीम को पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे आप अपना हाथ अपने दिल पे रखोगे, उसको पढ़ोगे, आंख बंद करोगे, ठीक है, और विजुलाइज करोगे कि वो हो गया है। यू हैव टू रीड इट एंड देन यू हैव टू से थैंक यू स्लोली। ईच ड्रीम वी हैव टू रीड लाइक दिस, हाँ, एंड वी हैव टू से थैंक यू। सो ये प्रैक्टिस है हमारे हार्ट मैजिक की। हम क्या करते हैं, लाइक आई एम टेलिंग यू व्हाट आई डू इन द मॉर्निंग व्हेन आई राइट माय ब्लेसिंग्स। आफ्टर राइटिंग वी आर सपोज टू रीड आर ब्लेसिंग्स, या आप जोर से पढ़ो या मन से पढ़ो, मन में पढ़ो। इन्होंने ये कहा ना, रीड ईच डिजायर इन योर माइंड or out loud. So in the morning when I read my blessings, I always put my hand, or most of the times I put my hand on my heart and then I read my blessings. तो अगर आप जोर से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मन में भी पढ़ रहे हो तो भी अगर आप अपना हाथ अपने दिल पे रखोगे तो लगेगा कि, जैसे बोला ना उन्होंने, कि योर फीलिंग्स विल इंटेंसिफाई। तो वही करना है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स, कि जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी फीलिंग्स होंगी उतना ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फोर्स होएगा टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स। आप वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तो है, उसमें उन्होंने रिसर्च की है कि हार्ट इज 5000 टाइम्स मोर मैग्नेटिक देन द ब्रेन। ठीक है, ये तो हम लोग ने बात की है बहुत बार कि आर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, इट इज द फीलिंग्स विच आर मैग्नेटिक। हाँ, तो ये क्यों होता है? आप बोलोगे नहीं, ये हार्ट में ब्लड है, ब्रेन में ब्लड है, दोनों में ही बहुत सारा ब्लड है, बट फिर भी हार्ट इतना ज़्यादा मैग्नेटिक है, ब्रेन उतना मैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों है? तो जितनी ज़्यादा हमारी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होंगी उतना जल्दी हम हमारे चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे हमारे लाइफ में, हम उस फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना कि फीलिंग्स आर द फ्यूल, फीलिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट, या बिकॉज ऑल द फीलिंग्स वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव दे ओरिजिनेट फ्रॉम आवर हार्ट। मोस्टली ये होता है ना कि गुस्सा आ रहा है दिल से उसको, यू हेट दैट पर्सन विद द बॉटम ऑफ योर हार्ट, ये भी आप ऐसे बोलते हो इतनी इंटेंसिटी से। तो अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स की बात करेंगे, और पॉजिटिव फीलिंग्स को इंटेंसिफाई करने के लिए दे हैव टू ओरिजिनेट फ्रॉम दी हार्ट, या। और उसको और ज़्यादा उन्होंने बोला है क्या करना है, इफ़ यू फोकस आवर माइंड ऑन द एरिया ऑफ आवर हार्ट, आवर फीलिंग्स आर मोर स्ट्रॉन्गर। तो उसके लिए यही करना है, हमारी ड्रीम्स पे हमको सारी प्रैक्टिसेस फोकस करनी है ना। इट इज़ लाइक वी हैव कलेक्टेड द मनी, बट इफ़ यू गो टू द मॉल एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, क्या करेंगे हम लोग? या सो वी आर डूइंग ऑल दीज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस टू अट्रैक्ट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। इसीलिए उन्होंने डे 0 में कहा, राइट डाउन व्हाट यू वांट। और आप देखिए डे 13 तक, जब तक हमने हमारी फीलिंग्स पे वर्क करना स्टार्ट किया, डे 13 से वी अगेन स्टार्टेड फोकसिंग ऑन आवर ड्रीम्स। यस, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू रीड ईच ऑफ आवर 10 डिज़ायर जो हमने लिखी थी 13th डे पे, और उसको पढ़ना है, दिल पे हाथ रख के, आँख बंद करके ऐसे सोचना है कि वो पूरा हो गया है, और दिल से आप थैंक यू बोल रहे हो। या You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them, or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. या तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम चाहते हैं, सी हाउ शी इज राइटिंग टू अस, इफ यू वांट टू स्पीड अप रिसीविंग ऑफ देम। ठीक है, वरना इफ यू वांट माने क्या आप नहीं चाहते हो आपकी जल्दी से ड्रीम पूरी हो जाए? हम सब यही चाहते हैं। तो शी इज टेलिंग अस, इफ यू रियली वांट टू डू दैट, यू कैन डू दिस हार्ट मैजिक ऑन योर डिजायर्स रेगुलरली। माने आज जो आप अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ोगे, कल भी पढ़ो, परसों भी पढ़ो ना। और कैसे पढ़ना है आपको? एक एक को पढ़ना है, दिल पे हाथ रख के पढ़ना है, एंड यू हैव टू से थैंक यू। बस इतना सा तो करना है, दैट वी कैन डू whenever we want। आप अपनी ड्रीम लिस्ट को फोटो क्लिक करके अपने फ़ोन में रख लो, या शुरू में तो हमने क्या किया था, अपने फ़ोन के कवर के अंदर ही अपनी ड्रीम लिस्ट हमने रख ली थी, सो दैट कभी भी बैठे हैं उसको खोल के पढ़ लें। बट आई रियलाइज उससे ईजी है फोटो ही उसकी क्लिक करके रख लो। आप सब ने एक ग्रुप बनाया होगा अपना, वी डिस्कस अबाउट दैट ना, कि आपका एक ग्रुप है जिसमें आपके इनर सर्कल की फैमिली की आप फोटो रख सकते हो, कि जब भी उसको देखा आप थैंक यू बोल रहे हो। ठीक है, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो अफर्मेशंस हैं, आप उस ग्रुप में डाल के रखो। कुछ आपको इंस्पायरिंग अच्छी चीज़ें लगती हैं, यू कैन पुट ऑन दैट, एंड आपकी ड्रीम लिस्ट तो उसी में ही फोटो क्लिक करके आप सेव करके रखो, सो दैट वेन एवर यू आर सिटिंग आइडल, या इंस्टेड ऑफ डूइंग योर इंस्टाग्राम, फेसबुक या कैंडी क्रश, उसके पहले आपने अपनी ड्रीम लिस्ट को पढ़ लिया। कितना टाइम लगेगा उसमें? 2 मिनट। आप आधा घंटा फेसबुक, इंस्टा और कोई गेम में लगा देते होगे, ठीक है, या व्हाट्सएप के वीडियोस देखते रहते होगे, उसके पहले आप ये कर लो। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी कीप ऑन एनर्जाइजिंग, वी कीप ऑन यूजिंग दीज प्रैक्टिसेस टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स। या Once you have practiced heart magic Khushbu, can you be a bit louder, please?
Just a little bit louder. Sure. Okay. Yeah, thank you. Okay, now. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. या तो शी इज़ टेलिंग अस जैसे जैसे हम हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी फीलिंग्स डीप होने लगेंगी एंड विद ग्रैटिट्यूड इट्स ऑल अबाउट द डेप्थ ऑफ फीलिंग बोला ना ग्रैटिट्यूड इज़ अ फीलिंग हम लोगों ने शुरू में ये बात की कि ग्रैटिट्यूड फीलिंग है और जितना ज़्यादा हम हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारा ग्रैटिट्यूड बढ़ता जाएगा क्यों जितनी बार आप ड्रीम्स पढ़ रहे हो आप यू आर लिविंग दैट ड्रीम ईच टाइम एंड ईच टाइम यू आर लिविंग दैट ड्रीम यू आर फीलिंग सो हैप्पी कि आपकी वो ड्रीम पूरी हो गई है और पूरा जैसे बोलते हैं ना पूरा इसका इंटेंशन ही यही है कि जितनी ज़्यादा हमारी फीलिंग्स ग्रैटिट्यूड की रहेंगी कि हमारी ड्रीम पूरी होगी उतनी जल्दी हमारे लाइफ में वो चीज़ें आएंगी द डीपर द फीलिंग्स द ग्रेटर द अबंडेंस यू विल रिसीव माने फीलिंग्स आर सो पावरफुल दे आर सो मैग्नेटिक कि हमारे लाइफ में अबंडेंस आना और ज़्यादा बढ़ जाएगा वो कह रही है जब हम ये हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ऐसा हो सकता है फिजिकल साइंस क्या होंगे कि आपकी फीलिंग जब बढ़ जाएगी तो आपने देखा है कभी आप पूजा करते हो तो ऐसा लगता है एक शिवर आई है कभी हुआ है आपके संग ऐसा कितने मन से आप भगवान जी की पूजा कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि यू गेट अ टिंगलिंग डाउन योर स्पाइन या कुछ आपको ऐसी सिहरन सी होती है ऐसा कभी हुआ है आपके साथ तो शी इज टेलिंग अस आप जब दिल से इतना ग्रैटिट्यूड करोगे तो हो सकता है आपको ये सारी फीलिंग्स आए योर आईज माइट स्टार्ट वाटरिंग कि आप इतना इमोशनल हो गए कि आपको आंसू आ गए आई हैव सीन लाइक आप पूजा करते टाइम यू माइट हैव सीन सम पीपल आर सो इमोशनल हाँ अब लोग नहीं वो दुख के मारे रो रहे होते हैं नहीं कई जन खुशी के मारे लाइक दे आर सो कनेक्टेड दे आर फीलिंग सो मच ना दैट इज हाउ इट हैपेंस विद देम तो आप जब कह रहे हो शी इज टेलिंग अस आप जब ये प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन एक्सपीरियंस सच थिंग्स तब आपको पता चलेगा कि आपकी फीलिंग्स बढ़ गई ऐसे तो अपन नॉर्मल पढ़ते हैं कितने बार कुछ नहीं होता है कितने बार आप कोई चीज़ देख लेते हो एंड यू गेट सो इमोशनल है ना सो दैट इज हाउ यू फील दैट येस यू आर कनेक्टिंग यू आर कनेक्टिंग दोज थिंग्स विद योर हार्ट शी इज टेलिंग अस हो सकता है आपको ये कुछ नहीं होए बट अगर आपको ये सारे फिजिकल साइंस नहीं भी होते हैं और आपको फिर भी यू विल फील पीसफुल एंड रिलैक्स्ड जैसा कभी आपने इसके पहले फील नहीं किया होगा आपने अपनी रोज ही ड्रीम लिस्ट आप ही की लिस्ट है आप इतने बार उसको पढ़े होगे बट कल जब आप ये हार्ट मैजिक करके उसको पढ़ोगे यू विल हैव अनदर काइंड ऑफ अ फीलिंग ओके सो दिस वाज दिस वंडरफुल प्रैक्टिस लेट्स रीड Okay. Magic practice number 20, heart magic. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. या Focus कल your जब आप ये mind. पढ़ोगे 1 सेकेंड खुशबू कल जब आप अपनी ब्लेसिंग्स पढ़ोगे इफ़ यू वांट टू इंटेंसिफाई योर फीलिंग्स जैसा उन्होंने कहा है तो आप जब इनको पढ़ रहे हो यू कैन कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड यू कैन फील इट कि यस आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपने देखा है शाहरुख खान अक्सर ऐसे बात करता है दिल पे हाथ रख के कितने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस इसी तरीके से एक्ट्रेस कम देखी मैंने एक्टर ही ज़्यादा देखे हैं दैट वो लोग ऐसे करके बात करते हैं क्या तो वो क्यों कर रहे थे वाई आर दे लाइक कि वो दिल से आपकी कुछ ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट कर रहे हैं दिल से दे आर फीलिंग इट कि आपने उनको अप्रिशिएट किया है एंड दे एक्सेप्ट विथ ग्रैटिट्यूड तो अब देखो वो क्या कर रहे होते हैं वो भी यही कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उनको पता है हाँ या जैसे आई थिंक सोनिया जी ने बोला था कि एक रिलीजियस सेक्ट में ये कस्टम ही है कि वो दिल से हाथ रख के ही बात करते हैं हाँ तो वो है तो उनको पहले से ही पता है हार्ट मैजिक बट हमको अभी पता चला है तो हम लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं टू इंटेंसिफाई आवर फीलिंग्स एंड वी ऑल वांट आवर ड्रीम्स टू कम फास्ट या सो इफ दिस इज द वे वी डू इट यस प्लीज रीड मैं ऐड करना चाहूंगी हम कभी कभी किसी के पैर भी छूते हैं तो भी हम पैर छूने के बाद दिल पे ही हाथ रखते हैं हमेशा यस कभी कभी क्या एक्चुअल में हाँ वी डू दिस वेरी ट्रू खुशबू थैंक यू फॉर दिस या यस Okay. Second, focus your mind and your attention on the area around your heart. या Okay. Close your eyes and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. यस Take your top 10 desire list and practice heart magic
by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Hmm. Yes. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. या तो क्या करना है आपको, अपनी टॉप 10 डिज़ायर लिस्ट के पहले उन्होंने कहा है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये प्रैक्टिस क्या करना है, कि कैसे आपका फोकस ऑफ योर माइंड आपके हार्ट पे आता है। तो शी इज सेइंग बिफोर वी डू दैट यू कैन प्रैक्टिस इट वंस और ट्वाइस। कि आप देखिए ना, आप चेक पे भी साइन करने जाते हो, आप क्या करते हो, एक बार पहले देखते हो ना दूसरे पेपर पे पेन चल रहा है ठीक से कि नहीं, स्मूथली चल रहा है कि नहीं। तो शी इज टेलिंग अस बिफोर डूइंग द एक्चुअल प्रैक्टिस विच इज़ फ्रॉम द स्टेप 4, हमको एक बार ये देखना है कि क्या हमारा ध्यान एक्चुअल में हार्ट पे आ पा रहा है। हाँ, तो शी इज टेलिंग अस यू हैव टू डू दिस, फोकस योर माइंड एंड अटेंशन ऑन द एरिया अराउंड योर हार्ट। फिर आंख बंद करके आप सोचो आपके दिल से वो थैंक यू निकल रहा है। हाँ, इसको करने के पहले इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली बी ग्रेटफुल फॉर योर हार्ट ऑल्सो, या कि आप दिल से अपने डिज़ायर के लिए थैंक यू कर रहे हो, बट आप अपने दिल के लिए भी थैंक यू कर लो। इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। आप देखो ना, ब्रेन डेड लोग फिर भी जिंदा रहते हैं, आपने देखा है मूवीज में, यस, बट वो तब तक जिंदा रहता है जब तक हार्ट फंक्शन कर रहा है। यस, ऑल दी ऑर्गन्स कैन बी बी विद यू, नॉट बी विद यू, बट इट इज द हार्ट विच इज फंक्शनिंग पैदा होने के पहले टिल योर लास्ट ब्रेथ। या सो दिस इज वॉट वी हैव टू डू। आपने ये किया एंड देन यू हैव टू टेक योर टॉप 10 डिजायर लिस्ट। हर डिजायर को पढ़ना है, आंख बंद करना है, दिल पे हाथ रख के आपको थैंक यू बोलना है, एंड यू हैव टू कंटिन्यू विद योर लिस्ट। इफ़ यू वांट यू कैन डू इट वंस, यू कैन डू इट 10 टाइम्स, वो आपके ऊपर है, जितना ज़्यादा आप उसको जल्दी चाहते हो। जैसे उन्होंने कहा ना, इफ़ यू वांट टू स्पीड अप अट्रैक्टिंग योर ड्रीम्स यू कैन डू दिस प्रैक्टिस एज ऑफन एज पॉसिबल। या सो थैंक यू खुशबू, थैंक यू फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस। Yeah, so we'll do gratitude and then we'll take some questions or sharings if you have. So let's join our hands, close our eyes, and let's do the Thank gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing day all of us had today. Thank you for each and every breath that we took, for the sun shining on our head, for the water that we drank, and the amazing yummy food that we ate. Thank you for the smiles, the laughter, and happiness all around. Thank you for the happiness of my family and friends and all of us present here. Thank you for guiding us on this path of gratitude. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you for your, Thank interaction, you. for being here with me, for your sharing your dreams with me today. Thank you so much. Yes. Wonderful meditation. Thank Yes. Thank you for the heart meditation. I had just. Thank you. Thank you. Thank you for nice teaching. Thank you, Renu ji. Thank you. Yes. Amazing, amazing, really amazing, too much. Thank you. Yes. So someone wants to share कि आज आपका कैसा रहा मैजिक फुटस्टेप्स, या आप उसको रोज इनकॉर्पोरेट आपको अपने रूटीन में करना है कि आप कहीं भी चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट शुड ऑलवेज बी देयर ऑन योर माइंड। एंड आई एम टेलिंग यू, आपको लग रहा होगा कैसे करेंगी, क्या होगा, ट्रस्ट मी, जितने जन हम लोग, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हु हैव बीन फॉलोइंग द मैजिक बुक, आपको अब सोचना पड़ता है चलते चलते थैंक यू बोलने का, हाँ, कि वो ऑटोमेटिक आता रहता है, कल से आने लगा। Automatic comes. comes automatically. Yes, तो बस यही करना है, जितना ज़्यादा थैंक यू करेंगे। आपने सुना जैसे कई लोग बोलते हैं कि उसने उस मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर ली है, यू वर्ड दिस, उसने उस मंत्र में इतना जाप किया है कि उसमें उसको सिद्धि हो गई है। या तो आप सोचो, हम लोग जो इतना थैंक यू बोल रहे हैं, तो फिर आपको उसमें रीज़न नहीं सोचना पड़ेगा। आप जब थैंक यू बोलोगे तो ऑटोमेटिक वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होंगी कि वो समझ जाएंगे सामने वाले जन, है ना। इट इज़ लाइक योर फीलिंग्स विल कम थ्रू जस्ट थैंक यू, और आपको रीज़न नहीं देना है, आपको आइटम नहीं सोचना, आपका एक एक थैंक यू जैसे बोलते हैं ना, उस फीलिंग और उस ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ रहेगा। सो दैट विल कम विद प्रैक्टिस। यू जस्ट कीप सेइंग थैंक यू, कीप फीलिंग द वर्ड एंड फील दैट इट इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। यस, जैसे मैं कल विजुअलाइजेशन की थी फॉर 7 हिंदी में मिनट्स। बोले तो व्हाट हैपेंड? हाँ, नहीं रेनू जी, आप बोल रहे थे आपने कल 7 मिनट विजुअलाइजेशन किया था। हाँ, तो मैं लेकिन कर ली 10-15 मिनट्स, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। वाओ, ऑसम ऑसम। मैं सोच रही थी मेरा कंप्लीट हो गया, आई डोंट थिंक सो, बट आई सी द वॉच, और कंप्लीट 20 मिनट्स या 18 मिनट्स हो गया। कांट इमेजिन कि मैं बहुत अच्छा लगा करके, रियली टू मच, हाईली अप्रिशिएटिव कि
You are learning me too much, inspired too much. Very grateful to Thank you you, because Renu. you are Thank you, giving Renu. nice and nice Yes. lecture, nice explanation. Really too Okay. much. थैंक यू सो स्वीट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से क्या होता है जब Yes. आप ये जो कर रहे हो विजुअलाइजेशन इसको आपको हाँ रेगुलरली करना है ठीक है और आप देखोगे आपको लाइक सो मेनी पीपल शेयर आप कोई भी और बुक्स पढ़ोगे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दे आर जस्ट बुक्स रिटन ओनली अबाउट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन माने बुक्स लिखे हुए हैं खाली विजुअलाइजेशन के ऊपर उसमें हाँ इतना हाँ पावर है हाँ जो आप बोलते ओके हो ना मेडिटेशन करना है क्या करना है जितना ज्यादा विजुअलाइज करेंगे और होना क्या चाहिए कि उसमें ग्रैटिट्यूड मिक्स होना चाहिए आप जब विजुअलाइज करें इट हैज टू बी अ हैप्पी विजुअलाइजेशन हैप्पी हाँ यस तो बहुत अच्छा उतना लगता है बहुत अच्छा हाँ तो उतना ज्यादा आप उस फ्रीक्वेंसी में रहते हो हाँ आपकी बॉडी में ऑलरेडी इट इज लाइक इट इज ऑलरेडी हैपनिंग फॉर यू एंड देन यू आर अट्रैक्टिंग इट फास्टर कभी तो रात को 2 बजे भी उठ के ब्लेसिंग करना चालू कर दिया मेरे को मालूम पड़ा घर में कितनी टाइम हुई कभी मैं रात को वाओ उठती हूँ मैं सोची अर्ली मॉर्निंग हुआ होगा तो मैं कर देखती तो 2:30 बज रहे 2 बज रहे ओह वेरी नाइस हाँ, यस बहुत अच्छा लगता है मेरे को वेरी मेरा लगता है जी में कुछ नया कुछ मिला मेरे को वेरी गुड लाइफ में वेरी नाइस रेणु जी एंड आई एम श्योर आप ऐसे ही करेंगे तो आपके ड्रीम्स सब पूरे हो गए हैं ओके हाँ एकदम थैंक यू 100% 101% करोड़ परसेंट यस एकदम या आई बिलीव सो मच यस एकदम इट इज ऑल अबाउट बिलीफ है ना बोलते हैं ना बिलीव और फेथ कैन मूव माउंटेन्स इट इज दिस ओनली यस यस So anyone else wants to share? Thank you Renu ji for your sharing and I'm sure जो लोग visualize नहीं कर रहे हैं आप उनको inspire कर रहे हो कि visualization बहुत बहुत important है minimum 7 minutes for your top 3 dreams अगर आप करते हो combine करके you know तो वो बहुत बहुत effective होता है and शुरू में मेरे को भी लगा था 7 minutes 7 minutes हाँ सोचेंगे बैठ के है ना really बट व्हेन यू आर डूइंग इट हाँ एक्चुअल में शुरू में मेरे को 7 मिनट्स बहुत ज्यादा लग रहा था बट लेटर आई थॉट नहीं देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन सी इन माय ड्रीम हाँ व्हेन आई एम विजुअलाइजिंग तो आप उसको करते जाओ द मोर यू आर थिंकिंग द मोर यू आर फीलिंग द बेटर इट इज my daughter Natasha is joining art session but she feels too much very interesting ओके ओके Natasha my daughter is Natasha अच्छा ओके she's ओके doing with me this session but Hmm. she is more attractive she बोलती मम्मी मेरे को बहुत अच्छा लगता है I like too much I am very confident and my face is glowing too much just now she told me yeah Oh, very nice, very good. हाँ Yeah. Yes. So anyone wants to share or should we call it a night? And आप अभी से ही अपने ड्रीम्स पे हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो जितने बार कल ध्यान करके आप थैंक यू बोलो आप सोचो कि वो दिल से ही थैंक यू निकल रहा है यस thank you या थैंक यू thank you Thank thank you. Thank you. thank Thank you Thank you, thank Priya you ji. thank you Thank so you. much and good night. Yes, good night. night good night Thank you, Priya. thank you. thank you